Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this channel, every year, thousands of candidates, they clear prim, then they clear mains, and then this channel helps them how they should present themselves in interview. So lot of videos are there on interview preparation. So if you watch the complete playlist, it helps you to perform very well in interview and ultimately achieve your target. The link of this playlist I have provided you in the description as well as comment column. Along with this, if you are preparing for interview, you must prepare 1 month current affair. The source of current affair I have given you in the description. Click the link, you will land up on an app, download the app and take 2021 plan, apply coupon code AA03, you will have 10% off. And read at least 1 month current affair depending upon your date of interview. Now some of the candidates are worried that they have applied to another state and they are asking time and again, sir, whether we will get less marks as we belong to another state. First thing, it should be very clear in mind of everyone. No such biasing is there when interviews are held. The board will give you marks based on your performance. That means you should put your energies in preparing for the interview, not on such flimsy things that may be in circulation, in social media by certain people. Those are having very less experience about interviews. If a candidate gets less mark, it is on account of his or her performance. And if another candidate gets the good mark, it is dependent on his or her performance. So your focus should be on preparation of important aspects. And all these important aspects are covered in the playlist. So my advice is cover the entire playlist. It will make you enabler to address your answer before the board with confidence. Now some people say, sir, how to justify why you have applied from another state? No build-up answers will fetch any marks to you in interview. If they're asking, say you belong to Delhi, why you have applied from UP, you should give the real reason. The one real reason can be there is no RRB in Delhi. So every Delhi candidate will apply for a RRB that is in the adjoining states like UP, Haryana, maybe Punjab, maybe Rajasthan and so on. Now there can be cases South Indian person has applied for UP. Now the reasoning for him may be low vacancy in his state. This is a genuine answer. Give this answer. Every candidate aspires for selection. So if a candidate has filled a particular state, there has to be some reason. Reason can be number of vacancies. Reason may be he wants to settle in that state. Reason can be there is no vacancy in his own state. Reason may be unemployment. Reason may be his high age. He does not want to take chance with the low state vacancies. So you should tell the facts. Board is interested in a genuine answer. Board is interested in honesty. Board is not interested in build-up answer. So nobody can frame an answer for you. Answer is to be given by you depending upon the logic. Based on that, you have applied for that state. And every candidate has a reason why he has applied for another state. Straightforward, give that answer. That will help you. So the crux of the problem and the answer is always give truthful answer. Always give the real reason. Don't be afraid. Some people are afraid if we will speak truth, they will trap us in the counter questions. No. If you will give the untruth answer, false answer, then only you are trapped.
But if you are giving a right answer, you will be very easily able to answer the counter questions because you are telling the truth. So truth has feet and the lies does not have any feet. So it is testing. If they are asking, that means they want to know the real reason and give the real reason. That's all. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। ये वो चैनल है जिसके हजारों लोग हर साल प्री क्लियर करते हैं, उसके बाद काफ़ी लोग मेंस क्लियर करते हैं और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू में भी उनकी मदद की जाए और अल्टीमेट उनकी सिलेक्शन हो। और सिलेक्शन के बाद भी वो इस चैनल से जुड़े रहते हैं क्योंकि उनके कैरियर प्रोग्रेशन में भी ये चैनल हमेशा मदद करता है। JIB कैसे करनी है, CIB कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे लेनी है। तो ये चैनल है जो आपका साथी है हमेशा के लिए। अब क्योंकि RRB इंटरव्यू में हमारे बहुत कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में हो रहे हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए भी इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है। 4 प्लेलिस्ट मैंने आपको दी है जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दी है और कमेंट कॉलम में भी पिन करी है। इन चारों प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। पहला काम तो ये कर लीजिए आप। दूसरा काम है 1 महीने की करंट अफेयर तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर का अच्छा सोर्स मैंने आपको बता दिया। इसको लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे और ऐप पे पहुंचने के बाद 2021 का प्लान ले लीजिए। कूपन कोड AA03 लगा दीजिए, 10% आपको ऑफ मिल गया और 1 महीने का आप करंट अफेयर कर लीजिए। जो भी आपकी डेट की एग्जाम की डेट है उससे 1 महीना पहले से आप कम से कम कवर कर लें और पुराना आपने किया हुआ है उसको रिफ्रेश कर लें। अब कई आपके प्रश्न हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी वीडियोस में कवर्ड है, तो जब आप उसको देख लेंगे आप में निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। अब आज कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि सर हमने दूसरे स्टेट से अप्लाई किया है, तो इस प्रश्न को हम कैसे आंसर करें, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं कि अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको इंटरव्यू में कम नंबर मिलेंगे, जबकि ये सच्चाई से परे है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड आपकी फेयर असेसमेंट करता है, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं। तो ये भय अपने दिल से निकाल दीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि आप मान लीजिए दिल्ली से और आपने UP से अप्लाई किया, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए? आपका उत्तर बड़ा स्पष्ट है, दिल्ली में कोई RRB नहीं है। तो नेचुरली जो दिल्ली को बिलोंग करता है कैंडिडेट वो नियर बाय स्टेट में ही अप्लाई करेगा। तो चाहे वो UP में करेगा, चाहे हरियाणा में करेगा, या पंजाब भी कर सकता है, राजस्थान भी कर सकता है और नियर बाय स्टेट्स में कर सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी साउथ इंडियन कैंडिडेट ने UP के लिए अप्लाई किया, उसका कारण कुछ और हो सकता है। उसका कारण हो सकता है कि उसके स्टेट में वैकेंसी नहीं है, UP में ज़्यादा वैकेंसी है या गुजरात में ज़्यादा वैकेंसी। मीन्स कहने का अभिप्राय ये है, इस एग्जाम्पल में हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो आपका जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से आपने दूसरे स्टेट में अप्लाई किया है, वही रीज़न आपको इंटरव्यू में बताना है, सच बोलना है। क्योंकि जिसने भी दूसरे स्टेट से अप्लाई किया है कोई कारण होगा ना। अधिकांश लोगों के लिए कारण ये हो सकता है कि वैकेंसीज ज़्यादा है, अधिकांश लोगों के लिए कारण हो सकता है कि अब उनका आखिरी चांस है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो ऐसे स्टेट में जाना चाहते हैं जहाँ यूजुअली कट ऑफ लो होता है, या कोई और भी रीज़न हो सकता है, या वो स्टेट में सेटल होना चाहते हैं। जो आपका जेन्युइन रीज़न है वो आपने इंटरव्यू में बताना है। इंटरव्यू में कोई भी आपका बिल्डअप आंसर आपकी मदद नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना है। इंटरव्यू में जो भी आपसे बात पूछी जा रही है वो आपसे सच्चाई जानना चाह रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि ये कैंडिडेट कितना ट्रूथफुल है, और जितना आप सच्चाई का साथ देंगे, जितना सच्चाई से आप आंसर देंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अब कई लोगों को ये डर लगता है कि हमने वहाँ सच बोल दिया, फिर काउंटर क्वेश्चंस होंगे, हम फंस जाएंगे। मेरा कहना ये है कि अगर आपने सच बोला है तो आप हर काउंटर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। फंसते कब हैं आप? जब आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं है। तो जब आपने झूठ बोला तो नेचुरल है काउंटर क्वेश्चन में आप पकड़े जाएंगे। और काउंटर क्वेश्चन जब बोर्ड को लगता है कि एक कैंडिडेट झूठ बोल रहा है, तभी वो ज़्यादा काउंटर क्वेश्चंस करता है, क्योंकि वो आपको जताना चाहता है कि आप उनका बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
जो लोग इंटरव्यू लेते हैं बहुत सीनियर होते हैं, वो आपके फेस एक्सप्रेशन से ही जज कर लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। इसलिए झूठ का सहारा ना लें, सच्चा आंसर दें, यही आपका रियल आंसर है, कोई इसका बिल्डअप आंसर नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल।